चले फिंगर रेशियो से पहले काम करते हैं, 2 वीडियो देख लेते हैं छोटे छोटे, फिर फिंगर रेशियो को समझने में मजा आएगा।
there's so many variables. Very impressive. Professor Manning has agreed to do one further, more radical test. To see if finger length can be used to determine our volunteers' brain sex. How male or female their brains are. Professor Simon... नहीं एक और से If I arrange you along this line, in terms of the amount of testosterone you've had before, that has no implications for sexuality, but it has some implications about your very, very early brain organization. Our fingers may provide a record of testosterone in the womb, because the genes that trigger its production also determine finger growth. In general, the men and women perform to type. The men are at the male end, and the women are at the female end. Liz and Craig are at opposite ends. But there's one exception. Grace's fingers put her well into the male domain. In our survey of 500,000 people, the biggest difference between men and women was in visuospatial tasks. On average, men scored 40% higher than women. But some women did outstandingly well. And Professor Manning thinks that's partly down to testosterone. If Professor Manning is right, Grace should do rather well at our very own visuospatial task. Hi everybody. Hi. Tony. How are you today to teach you on the CAT 432 Baco loader? Operating a digger requires a lot of hand-eye coordination and visuospatial skills. Okay, as if you're holding a fine lady. And according to our survey, most women aren't that great at visuospatial skills. Got the bucket flat? No, don't dig it in there. Yeah. That's right. All our volunteers have to do is copy Tony. And try not to break too many eggs. According to Professor Manning, Grace is the only woman who'll be any good at this. As expected, the women were comprehensively outclassed by the men. But there was one exception. Grace was joint winner with Lloyd, scoring 3 times higher than the rest of the women. I think most of the girls, the other 4 girls, are living up to the social expectation. इसको हटा दे जरा with these small 2 videos what I feel एक छोटा सा कंसेप्ट आपको पता चल गया होगा कि अबाउट व्हाट आई वांट टू टॉक दिस वाज अ होल कंप्लीट यू कैन से 1 hour वीडियो विच आई हैव सीन ऑन डिस्कवरी आप सभी रिसर्च स्कॉलर्स हैं अलग अलग टॉपिक पे पीएचडी कर रहे हैं तो एक आउट ऑफ बॉक्स अगर आपको कोई आइडिया मिलता है कोई चीज़ मिलती है बड़ा यूनिक चीज़ रहती है मैंने जब इस वीडियो को देखा 1 घंटे का वीडियो था मैं डिस्कवरी पे समवेयर ये लॉन्च हुआ था 2008-9 में हुआ था देन आई हैव सीन दिस थिंग मैं यार इस पे काम हो सकता है
इसको स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के साथ कोरिलेट करके देखा जाए, जिसकी उंगली के अंदर ये फ़र्क है वो परफॉर्म कैसा करते हैं। तो आई डन एक मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट भी किया, कहीं स्टूडेंट से पीएचडी भी कराए, तो बहुत सारे। चलो देखते हैं क्या कंसेप्ट आता कहाँ से, क्या व्हाट आर द थिंग्स फॉर दैट। ही इज द प्रोफेसर मैनिंग हु हैज गिवन दिस कंसेप्ट ओवर देयर। यू हैव ऑलरेडी सीन दिस जेंटलमैन ओवर देयर कि व्हाट आई विल बी यूजिंग दीज टर्म low 2D 4D and high 2D 4D. Look over here, there are the two fingers. One is known as your, this one is your ring finger, this one is your index finger. अगर इन दोनों की लंबाई को देखें, दोनों की लंबाई को you can measure this one and divide this one. इनको माप लें और इनको डिवाइड कर दें, some ratio will be coming out. I'll be बार मैं कुछ शब्द बोलूँगा, low 2D 4D and high 2D 4D. low means कि ये उंगली ज़्यादा छोटी है और ये उंगली ज़्यादा लंबी है. high का means के दोनों बराबर है, ये रेशो ये रहती है. It's something like this. इसको measure करने के there is a few technique like that. And it is you can say lot of researches has been done, already been done. It is sexually dimorphic. If you look over here, this is a typical male hand and this is a typical female hand. This one is a typical female hand. But it in some cases it is not like that. कुछ ऐसा नहीं मिलते हमें, उंगलियां नहीं मिलते. There can be so many reasons for that. If you look over here, in particular females, this index finger is you can say is longer than the typical female hand, and this one is a typical male hand. कि आपकी ये उंगली लंबी मिलेगी, रिंग लंबी मिलेगी, इंडेक्स छोटी मिलेगी. There are three scenario over. तीन किस्म के सिनेरियो हो सकते हैं, क्या मिलेंगे? And the things are not like that. Look over here. This one is a typical, you can say female hand, high 2D 4D. Index finger is longer one and ring finger is smaller one. दोनों बराबर हो, या फिर एक ये typical male hand, जिसके अंदर ये रिंग छोटी और इंडेक्स लंबी रहे. And how it happens? If you go back in your life, week 9 of your life, there's a one fluid which is known as the embryotic fluid, in which the embryo grows. What this theory says, if the amount of testosterone is more in that embryotic fluid, it has a deep effect on the development of brain, development of finger, development of your heart and lungs also. And your finger ratio and all these your fingers and your all this development depends upon the Hox genes family. There's a Hox genes, the family depends on that. What the Professor Manning says, if the amount of fetal testosterone, agar in that embryotic fluid, if the amount of testosterone is more, what it will be doing, it will making your ring finger longer and index finger shorter one, and it is vice versa. It is if its concentration is less one, then will it be making this one a longer one, this one is a shorter one. Along with that, if the high concentration is there, the hand will be something. In the high concentration of testosterone, the finger ratio will be something like that. And if a male is exposed with a low amount of fetal testosterone, his head will be something like this. And along with that, your ring finger, it is been said. This is said that if the finger ratios are like that, अगर आपकी उंगली means you have been exposed with the more and more testosterone when you have been growing. Along with that, it has the immense effect on the development of brain also. It affects the development of brain also. This is an indication that what the theory says. If you have been exposed with a more amount of testosterone in the womb, you are born with a better heart and lungs. You are born with a better heart and lung. There can be a number of different factors for that. This is one theory what this theory says. And this amount of testosterone also affects the brain also, because during this stage your brain is also developing. What the Professor Manning says, it is believed the excess of testosterone, if the amount of testosterone is more over there, it increases the growth of right hemisphere in respect of the left hemisphere. Look over here. ध्यान से देखें, अगली कुछ स्लाइड्स को देखें. There are two things over there in your brain. अभी आप देखेंगे रूटीन में देखेंगे कुछ एक बच्चा होता है, तो आपके भी बच्चे होंगे तो देखेंगे कुछ बॉर्न बड़े शार्प और कई शैतान रहते हैं और कुछ एक बड़े शांत रहते हैं. देयर इज अ नेचुरल टेंडेंसी इन दैट. कुछ में राइट हेमिस्फीयर डेवलप ज़्यादा, किसी में लेफ्ट हेमिस्फीयर ज़्यादा डेवलप है. क्या है कैसे नहीं आगे देखते हैं. And there are two things in there, the right hemisphere, imagination, creativity, and lastly thing is the risk-taking ability. Risk-taking ability. Again thing is that risk-taking ability is there in the right hemisphere. And it's the vice versa in the over here.
and in this one, left hemisphere, there is a language and all these things. If you are born with a more testosterone, and during that stage, if more testosterone is being exposed, that means your more right hemisphere is more active, और आप में जो राइट हेमिस्फीयर में चीज़ें हैं वो ज़्यादा डोमिनेंट होंगी। अगली स्लाइड को 30 सेकंड तक ध्यान से देखेगा। आई विल बी आस्किंग फ्यू क्वेश्चंस टू यू। ध्यान से देखें, बेकार कुछ करे, कंसंट्रेट करे, इसे ध्यान से देखते रहे। I'm going to ask few questions to you. Keep on looking at this slide. ओके, लास्ट वन। सर वो दरवाजा बंद कर देंगे, थोड़ा सा बाहर से आवाज आ रही है। थैंक यू। अभी एक चीज हुई होगी, हाउ मेनी ऑफ यू हैड नोटिस्ड कि सिर्फ एक ही दिशा में घूमती, क्लॉकवाइज घूमती रही? देखना, अभी सवाल सुने, आराम से सुने। कुछ ऐसे होंगे जिनकी सिर्फ एक ही दिशा में घूमती रहेगी, दूसरी दिशा में नहीं घूमी होगी 30 सेकंड में। कुछ ऐसे होंगे जिसकी क्लॉकवाइज घूमती घूमती ये एंटी क्लॉकवाइज हो गई होगी। कितने ऐसे थे जिसकी क्लॉकवाइज हो के, जिसने डायरेक्शन चेंज की? हाथ खड़ा करेंगे। जिसने डायरेक्शन चेंज की। कुछ ऐसे जिसकी डायरेक्शन चेंज नहीं की, एक दिशा में घूमती रही, एक दिशा में घूमती रही। दैट्स ग्रेट। व्हाट डज दैट इंडिकेट? इफ इट इज चेंजिंग द डायरेक्शन, दैट मीन्स योर बोथ हेमिस्फीयर आर इक्वली डेवलप्ड। If it is not changing the direction, that means your one hemisphere is more dominant in your personality. More dominant in your person. अभी देखते होंगे आप, रूटीन में देखते होंगे कि there are a lot of male who used to behave like a females. हाँ, देखोगा किसी से हाथ भी मिलाएंगे तो somebody used to shake like a manly hand, आराम से, हाँ, how are you? और कुछ ऐसे पड़ा है जब मरा हुआ चूहा हाथ में दे दे, उसका हाथ मिलाने को भी देता है। हाँ, होता है ऐसे, रूटीन में देखोगे। And some females are like that. कुछ फीमेल होंगे तो आपको, दे आर, विद ऑल रिस्पेक्ट टू द फीमेल हु आर सिटिंग ओवर हियर, प्लीज डोंट फॉरगिव मी, इस चीज को डोंट टेक इट अदरवाइज। अगर आपको कुछ लगे, मैं पहले ही माफी मांग लेता हूँ आप सभी से। कुछ ऐसे बोलते लोग, तो बड़ी मर्दानी औरत है, यू माइट हैव सीन दैट थिंग। बोलते नहीं बोलते, बड़े मर्दानी होते, मर्दों वाले काम करती है। यू माइट हैव सीन वन इन, उस वीडियो में भी आप देखे हो, विजुअल स्पेशल एबिलिटी में एक जो लेडी थी वो बेटर परफॉर्म कर रही थी दूसरों के मुकाबले में, बाकी नहीं कर पा रहे थे। The reason is that her right hemisphere is more developed in comparison to the left hemisphere. How it is there? Again, same thing is over there. This week 9 to 18 of your development, it has a direct effect on the development of your brain, on your lungs. और इसके साथ क्या दे रहा है ये चीजें? All these things. This affects the increase the level of confidence. Few people are very confident and few are not that much confident. Risk taking ability. पंगेबाज होते हैं लोग, कहीं होता है रूटीन में देखोगे चार तरफ कि हाँ एडवेंचर एक्टिविटी, कुछ ऐसा काम करना, हाँ करेंगे, विल गो, होता है, बहुत सारी चीज़ होती है। वेरी शार्प विजिलेंस। कहीं आगे बात करते हैं, क्विक रिएक्शन टाइम आल्सो, and it is more dominant, this factor is more dominant in the right hand. In respect of left hand, it is more dominant in the right hand. Or one more thing is what the research says, after the 2 years, 2 साल के बाद your finger length remain the same one. And इस पे बहुत कम स्टडीज हुई है, किधर, किस फील्ड में कम स्टडीज हुई है? इन द स्पोर्ट्स फील्ड। मैं कहूँ शायद perhaps I was the first one who started doing research on this field, कि सबसे पहला मैं 2008-9 में एक मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट यूजीसी का लेके इस पे काम किया था मैंने। उसके बाद कहीं पीएचडी भी कराए। मेजॉरिटी ऑफ वर्क हैज बीन डन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। व्हाट दे फाउंड ओवर देयर, इफ यू आर हैविंग अ लो 2D/4D रेशियो, अगर आपकी उंगली छोटी ये लंबी है, तो एक कंडीशन ऐसी मिली है कि देयर लेस चांसेस ऑफ हार्ट डिजीज इन दीज पीपल। ऐसे लोगों में हार्ट डिजीज होने के चांसेस कम रहते हैं। अगेन इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्पर्म प्रोडक्शन इन मेल, एज फार एज दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एंड इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्पर्म प्रोडक्शन इन द मेल. If you look over here, there is the high sperm production, the low sperm production. If you look over here, this is the, you can say normal sperm production. If your finger ratio is low 2D, if it is high, something like that, the sperm, it directly affects the sperm production also.
Same in the female also, it's vice versa. The quality of egg the female produces, and the more fertile egg, the more quality of good eggs are there. And it is related to so many things are there. There are so many things related to that. It is related to prostate cancer. If you are having, it is not everything is good over here. It is, if you are a high 2D, 4D, you are having a less risk. If you are having a more testosterone, there are more risk of prostate cancer also. One more thing you might have come across. This high 2D, 4D is more related to the eating disorder, correlate to the eating disorder. Eating low, आप एक और चीज़ देखना इसके बाद, क्योंकि एक और मैंने आपको बताया ना कि जैसा मेरा पैरों को देखने की हॉबी है, हाथ देखने की भी एक आदत पड़ गई। जब भी किसी से मिलते तो नज़र सीधी हाथ पे जाती कि उंगली कैसी है, ये कैसा आदमी होगा। हाँ, इट इज़ नॉट एवरी टाइम इट इज़, पर हाँ कुछ ना कुछ वो चीज़ मिल जरूर जाती है उसके अंदर, कुछ मिल जाती है। अगर आप चारों तरफ अगर नज़र दौड़ा के देखेंगे चीज़ें मिलेंगी आपको, मोर और लेस यू आर गोइंग टू फाइंड certain things. High 2D, 4D ratio, eating disorder. कम लोग ऐसा खाना खाते हैं. Same it is related to breast cancer and it is one research. All these are the, देखो हर किसी के साथ मैंने I have put a research paper over here, उसका लिंक दिया है कि it has been discovered by this and this gentleman in this and this way. And it is a low alcohol dependency. Alcohol dependency, low 2D, 4D, the chances out there. And it's a very important thing, very, very important thing. This is more chances of depression in male and female. अगर किसी मेल की ये उंगली ज़्यादा लंबी है, ये ज़्यादा छोटी है, चांसेस आर देयर कि उसको डिप्रेशन के चांसेस रहते हैं ऐसे में। और एक विद ऑल रिस्पेक्ट टू द फीमेल ओवर सिटिंग ओवर हियर, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लो 2D 4D इन द फीमेल आर टेंड टू बी मोर एग्रेशन, मोर एग्रेशन। ऐसे ही मैं बात कर रहा था तो एक मेरे मित्र है, उन्होंने मेरे को कहा यार मलिक तू क्या करता रहता है? मैं कुछ नहीं भाई, ये थोड़ा सा यूँ कर रहे। कहता यार तू मेरे को एक चीज़ बता यार, मेरी भाभी लड़ती बहुत है। तो मैं एक काम करियो, घर जाके ना उस भाभी को कहियो, हाथ यूँ दिखाया, उसकी उंगली देखियो ये कितनी छोटी है और ये कितनी लंबी है, घर जाके देखियो एक बार जाके। तो घर गया, रात को उसका फोन आया, मलिक साहब हाँ। मैं कहा क्या? कहता सर उसकी ये उंगली ना बहुत छोटी है लंबी। मैं इसका कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसी बनी ऐसी है। With all respect to the female, because this is testosterone related to the more aggression. Steroid क्या है? Steroid है क्या? Steroid related to the all testosterone derivative of testosterone hormone. That is the indicator of the more testosterone hormone in the female. If the female is having a more testosterone hormone, she is going to behave like a male. तो मेल की तरह एग्रेशन भी देता है। क्या देता है टेस्टोस्टेरोन? एग्रेशन देता है, ये सब चीज़ें टेस्टोस्टेरोन देता है। तो सेम थिंग ओवर हियर एंड इट इज रिलेटेड। तो एक और चीज़ देखना, जिस लोगों की ये छोटी है लंबी है, चिल्लाते बहुत है लोग, वर्बल एग्रेशन इज मोर ओवर देयर। एंड द वन मोर थिंग, यहाँ जो बैठे हैं सर इनको कुछ नहीं होता, सब एवरीबॉडी सीम टू बी मैरिड, ज्यादातर बिना शादीशुदा हैं, बिकार वाले हैं अब ये हाथ वाथ देखते फिरेंगे भाई। अब एक और चीज, अगली स्लाइड के हिसाब से एक और चीज करना, जन्म पत्री से पहले जो मेल है ना, मेल ऑल मेल्स, आज जब मैडम से मिलो तो मैडम की उंगली जरूर देख लेना। नहीं तो ये चांसेस बड़े बढ़ जाते हैं, ये वाले चांसेस बढ़ते हैं कि व्हाट इज देयर, इट इज रिलेटेड टू द मोर। एंड देखो सीधी सी बात है, टेस्टोस्टेरोन अब है क्या? स्टीरॉयड ले क्या लेते हैं उसके अंदर? स्टीरॉयड में हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के डेरिवेटिव्स हैं, जितना टेस्टोस्टेरोन रहेगा एग्रेशन देगा, आपको शार्प डिसीजन, चिल्लाएगा, सब चीज करेगा। सेम थिंग इज ओवर देयर। अगर उसमें नेचुरली ज़्यादा, शी इज बॉर्न लाइक दैट, राइट हेमिस्फीयर ज़्यादा डेवलप है, तो भाई ये काम करेगा ही करेगा, वो काम होंगे, उसकी पर्सनैलिटी में चीज़ें आएंगी। इसलिए भाई दोज आर सिटिंग ओवर देयर, जैसे हमारे में मानते जन्म पत्री के साथ साथ भाई उंगली भी देख लेना, जिंदगी ठीक बीत जाएगी। नहीं तो जिनका होगा कुछ नहीं कर सकते भाई, हाथ जोड़ के टाइम पास कर ले। उसका कुछ नहीं हो सकता, जाके हाथ देख लेना और फिर ठीक है, फिर देखा आगे। अगर एक और चीज, चलो एक और चीज मुझे ध्यान आई, चलो एक और चीज करते बाद, देयर इज वन सब्सटेंस व्हिच इज नोन एज सेलेनियम। सेलेनियम हम सुना कभी? सेलेनियम सब्सटेंस इज देयर। सेलेनियम इज रिलेटेड टू द लेवल ऑफ, अगर बॉडी में सेलेनियम का लेवल कम हो जाए तो चिड़चिड़ापन आता है। अगर बॉडी में सेलेनियम का लेवल कम होता है तो चिड़चिड़ापन आता है बॉडी के अंदर। तो एक बेहतर क्या होता है कि, और सेलेनियम सबसे ज़्यादा रहता है, नट आते हैं बाहर से, नट ब्राज़ीलियन नट आते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा, अगर ज़्यादा भी हो जाए तो उसकी टॉक्सिसिटी बहुत होती है सेलेनियम की। ब्राज़ीलियन नट आते हैं, एक नट रोज का खा ले तो पूरा हो जाता है।
नहीं लो तो इट इज देयर इन कैशू, काजू खाते हैं ना, उसमें 3-4 काजू जरूर खाएं। जिनकी अगर ये उंगली छोटी है, सुबह रोज मैडम को उठाए, नमस्ते करें, 3-4 काजू जरूर खिला दें उनसे। उसे खाने से क्या होता है, चिड़चिड़ापन नहीं आता, सेलेनियम लेवल ठीक रहता है, तो आदमी खुश रहता है, ठीक रहता है। और जितने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास भी जरूर ये जो पीएचडी स्कॉलर है, गाइड है ना, ये जितने स्टूडेंट्स हैं, अपने अपने गाइड को 2-4 काजू रोज सुबह खिला के आए तो पीएचडी आराम से ठीक ठाक हो जाएगी। कम से कम सिलेनियम की वजह से कमी नहीं होगी, चिड़चिड़ापन नहीं होगा, तंग नहीं रखेंगे। बढ़िया बताया। हाँ, अरे एक और बात, यहाँ सिर्फ 2 गाइड बैठे, बाकी नहीं बैठे हुए बाकी स्कॉलर बैठे हुए चलिए आगे चलते। हाँ, यू मैड हैव सीन कपल ऑफ थिंग्स। कहीं आपने लोग देखे होंगे, एक रास्ते से गुजारते हो, सारी जिंदगी रास्ता नहीं भूलते। मैड हैव नोटिस दैट थिंग। एंड यू मैड हैव नोटिस वन थिंग, कि एक आदमी को रोज आपके घर आता है, वो रास्ता ही भूल जाता है, उसको कभी रास्ता याद नहीं होता। It is again correlated with the one research was been done, sense of direction. It is again related to the 2D and 4D. If you are having a low 2D or 4D, you are supposed to having a better sense of direction. आपको sense of direction बहुत बेहतर, रास्ते भूलते नहीं हैं, sense of direction बेहतर रहती है। It is again correlated to this one also. Male baldness and all that thing. अब अगला बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, देखिएगा। Professor Manning has done one research in his University of Bath. What he has done over there, कि जितने टीचर्स थे कि जाओ गो एंड जस्ट फाइंड आउट देयर फिंगर रेशियो, बड़ा अच्छा रिसर्च पेपर है, कभी पढ़ना उनका, टाइप ऑफ ब्रेन टाइप एंड 2D 4D। उन्होंने कहा कि अपने रिसर्च स्कॉलर को दिया, जितने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, टीचर्स थे, सबके फिंगर रेशियो नोट के लिए और लेके आए। एंड व्हाट ही कंक्लूडेड ओवर देयर, व्हाट ही कंक्लूडेड थ्रू हिज रिसर्च, कि those who are having a low 2D 4D, they were from the science background. And for the literature, for those who are from the literature की उंगली बड़ी, ये शो करता है, लिटरेरी हैंड शो करता है जिसकी उंगली बड़ी, लिटरेचर, ये इन सब चीज़ों का। अब मैंने पंगा लिया, मैं कहा यार, मैं जब यूनिवर्सिटी बात में कि मैं मेरी में भी कोशिश करके देखता हूँ यहाँ क्या निकलता है। तो वन माई रिसर्च स्कॉलर, माई प्रोजेक्ट फेलो वाज विद मी एंड आई टेल मी, ओके जा भाई सारी यूनिवर्सिटी में जा, सभी टीचर्स के ना जाके, तकरीबन 400-450 टीचर्स है, रोज आता था, रोज 5, 7, 10, 20 के फिंगर रेशियो नोट करके लेके आता था वो। और जब वो आता था तो मैं सिर्फ उससे एक बात बोलूँ, कुछ नहीं, मैं जानता नहीं, क्योंकि आई वॉज ए न्यू गाई इन द यूनिवर्सिटी, आई वॉज नॉट नोइंग सो मेनी पीपल ओवर देयर, बट व्हेन ही यूज्ड टू कम टू मी, उसका वो कार्ड देख, मैं ये आदमी कैसा था सर, बड़ा, मैं क्या, आई डोंट वांट टू यूज दो सर, बड़ा जक्की आदमी था, बड़ा कॉपरेट नहीं किया इसने, और ये कैसा था सर, बड़ा अच्छा आदमी था। अगेन इट कोरिलेट टू, आगे में बात करेंगे, उससे कोरिलेट करता है। और जब मैंने रिजल्ट लिए, मेरे यहाँ ऐसा नहीं मिला, ऐसा I couldn't reach to a conclusion in my university, and I sum up my research paper with it. In India, we got a job by chance, not by choice. And I'm going to ask one question to you. आप लोग में से कितने, क्योंकि आप सब फिजिकल एजुकेशन में, अगर जनरल पॉपुलेशन होती तो उसके अंदर बहुत मजा आता बात करने का। यू माइट हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, दोज हु इज ही माइट बी अ प्रोफेसर ऑफ लॉ, पर उसका इंटरेस्ट म्यूजिक में होगा। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे। एक बार ऐसे था, मैं एक ऐसी गर्ल्स कॉलेज में था, सेम टॉपिक के ऊपर लेक्चर कर रहे थे, तो जैसे मेरे ये खत्म हुआ, लेक्चर खत्म हुआ, एक लेडी आई एंड शी वाज, मलिक साहब मेरा हाथ, अरे मैडम मैं कोई, आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर एंड ऑल दैट थिंग, कि मलिक साहब मेरा हाथ देख के बताओ। मैडम नजर वैसे, मैडम व्हाट इज योर सब्जेक्ट, इंग्लिश। मैडम डू यू हैव इंटरेस्ट इन इंग्लिश। मेरे को अभी भी उसका लेडी का जेस्चर जाता है, यूं हाथ बार, यही तो पापा को कहती रही कॉमर्स दिला दो, दिलाई नहीं, इंग्लिश में डाल दिया, मैं पढ़ाती हूँ तो आई एम ए टीचर ऑफ इंग्लिश, बट आई वोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन इंग्लिश। इंग्लिश मेरी रोजी रोटी है, ठीक है, पर इंटरेस्ट नहीं है मेरा। सिमिलर थिंग्स आर देयर, देयर आर 2 टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर, हैंड्स हैं, उसके ऊपर योर इंटरेस्ट आर आल्सो डिटरमाइंड, आप कैसे होंगे, आपका क्या इंटरेस्ट रहेगा, आप क्या काम करेंगे, व्हाट आर देयर आर सो मेनी थिंग्स आर ओवर देयर। हाँ, इट इज आल्सो रिलेटेड टू द सोशल डोमिनेंस एंड सो मेनी थिंग्स आर, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट सब चीज उसके साथ इट इज गोइंग टू कोरिलेट विद दैट। फाइन मोटर स्किल, एक और चीज देखें, दिस इज अ वंडरफुल एग्जांपल ओवर हियर। कुछ एक चीजें समय को देखते, कुछ एक चीजें निकाल दें क्योंकि समय भी काफी, और हाँ यहाँ रुकेंगे, 2-4 चीज यहाँ पे बात करते हैं। दिस स्टडी वाज डन एट द लंदन स्टॉक एक्सचेंज।
जब लंदन स्टॉक एक्सचेंज में व्हाट दे हैव नोटिस ओवर हियर, 2012 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज लंदन स्टॉक एक्सचेंज गई और उन्होंने एक बड़ा, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आई थी बात, न्यूज़ मैंने देखी थी इसको, कि दोज जो ब्रोकर्स थे जो जिनकी 2D 4D 0.39 बहुत कम होती है, ये रेशियो बहुत कम होती है, हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, दे हैव अर्न $1.2 मिलियन, और जिनकी मीडियम थी, जिनकी हाई थी, उन्होंने बहुत थोड़े पैसे कमाए। समवेयर इट इज गोइंग टू कोरिलेट विद योर डिसीजन मेकिंग आल्सो। Such people, with all respect to the female who are sitting over here, you might have noticed one thing. Those who are a male administrator, कर दिया देख लेंगे, कर दिया डिसीजन ले लिया, कर लिया. And the female, if the administrator or some females are there, administrator there, they used to keep on thinking several times, करूं ना करूं, फलाना नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा. थिंग्स आर समथिंग लाइक, है या नहीं ऐसा? बिल्कुल ऐसा. यू माइट हैव सीन अराउंड यू, आपने देखा होगा. इट इज अगेन कोरिलेट विद हाउ क्विक यू डिसीजन मेक, वेदर इट कैन बी ठीक है या नहीं है, उसके ऊपर दैट्स अगेन अ डिफरेंट थिंग. और ये सब चीज क्या बात है, ये और स्टॉक एक्सचेंज में दो हु यूज्ड टू टेक अ क्विक डिसीजन, हु यूज्ड टू टेक मोर रिस्क, जो ज्यादा रिस्क लेते हैं ज्यादा अर्न करते हैं. इट इज कोरिलेटेड विद दैट. वन स्टडी, एक जर्मन स्टडी हुई कि ऐसे लोग, आपने एक और चीज देखी होगी, आप गाड़ी चला रहे रूटीन में, अब गाड़ी एक आराम से गाड़ी चलती जा रही है, अब उसको 2-3 बार हॉर्न मारा, फिर देखते लेडीज है, फिर कहते कोई बात नहीं, आप आराम से, लेडीज है, फिर आराम से साइड से निकालते आगे लेके चले जाते हैं. यू माइट हैव नोटिस दैट थिंग. एक कंसेप्ट इसमें देखो, विजुअल स्पेशल एबिलिटी. फीमेल्स आर नॉट दैट गुड इन दैट, बट फ्यू फीमेल्स आर वेरी गुड. कुछ लेडीज देखोगे बड़ी तेज गाड़ी चला, मेरी मिसेज चलाती है भाई, मेरे को पता, 2D4 वो बहुत तेज गाड़ी चलाती है, 100-120 से नीचे नहीं चलाती. 2D40 है, जो हालात है मेरे भी ऐसे ही है भाई, कोई अलग नहीं है, उसका भी कुछ नहीं हो सकता. तो लेवल ऑफ एग्रेशन है, विजुअल स्पेशल एबिलिटी. और एक और चीज, ऐसे लोग रिस्क टेकिंग एबिलिटी और गलत पार्किंग, खड़ा ये पे कुछ नहीं होता देख लेंगे, तो वो होता ना, वो क्या रिस्क टेकिंग एबिलिटी एक हिसाब से साधारण पंगेबाज, कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं इनके अंदर, ये सब चीजें मिलती हैं. इट कैन बी डिनोटेड फ्रॉम योर फेस आल्सो. लुक ओवर हियर, देखना जरा, कुछ का फेस मिलेगा बिल्कुल मैन लाइक फेस, हाई चीक, ब्रॉडर फेस, और कुछ मिलेगा फीमेल लाइक फेस. लुक ओवर हियर, दिस इज ए टिपिकल फेमिनिन फेस, पतला फेस मिलेगा, ठीक है. ये कैसा है, टिपिकल मस्कुलाइन फेस, मोर टेस्टोस्टेरोन, समथिंग लाइक दिस. ये अपोजिट मिलेगा. इट कैन बी जज फ्रॉम योर फेसेस आल्सो. दिस आर टिपिकल मेल, टिपिकल फीमेल, एंड अगेन इट इज बीन कोरिलेटेड टू द इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट क्वालिटी आल्सो. ऐसे लोग जिनकी 2D 4D कम, एक्सट्रोवर्ट मिलेंगे, हर किसी से बात करेंगे, अच्छे से बात, जल्दी घुल मिल जाएंगे. और जो ऐसे मिलेंगे वो कम मिलते हैं, कम बातचीत करते हैं. देखना रूटीन में बिहेवियर देखेंगे तो गोइंग टू बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें कोई चीज़ को निकाल देते हैं इनमें से. अब मैंने कहा मेरी आदत है, कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ. ये कौन, अमिताभ बच्चन. इसकी ये उंगली देखना, इसके बराबर आ रही है रूटीन में, देखना एकदम इसके बराबर है. इसकी ये उंगली इसके साथ ये वाली देखना बराबर, दैट मीन्स उसकी ये उंगली इसके साथ बराबर, लंबी के बराबर है. इसकी आवाज देखना कैसी है, बहुत भारी और मस्कुलाइन, समथिंग लाइक दैट. अभी आपको 3 हाथ दिखाता हूं. ओबामा, आइंस्टाइन, एंड दिस इज टिपिकल फीमेल हैंड. प्रिंस डायना, टिपिकल फीमेल है, टिपिकल फीमेल कैरेक्टरिस्टिक. देखो पतली लंबी, टिपिकल फीमेल कैरेक्टरिस्टिक. और टिपिकल, और एक चीज देखेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा आगे इसमें. देखा, जानते हो कौन है? इंदिरा लुई, CEO पेप्सिको. इंदिरा लुई, CEO पेप्सिको, टाइम्स मैगजीन में मोस्ट पावरफुल वीमेन के अंदर टॉप 5 में थी ये. Look at her head. Very low 2D. इंडेक्स फिंगर कितनी छोटी और दूसरी कितनी लंबी है.
क्विक डिसीजन एबिलिटी, डिसीजन लेना, ये सब चीज लेना, वो करना, तो समझो। देखो एक और बात है, अलग अलग थ्योरी, दे कैन बी सो मेनी रीजंस फॉर दैट, बट व्हेन यू आर वर्किंग ऑन दैट थ्योरी, यू आपका दिमाग फिर उसी तरफ चलता है, आप है वो सक्सेसफुल लोग। एक और चित्र देखना, गजब की चीज देखोगे, हैरान रह जाओगे देख के। कौन है? मार्क जकरबर्ग, फेसबुक सीईओ। ऐसे हाथ बहुत कम मिलते हैं देखने। इतनी छोटी उंगली देखी होगी आपने, ये देखना कितना फर्क है। मोर रिस्क टेकिंग एबिलिटी, क्विक डिसीजन टेकिंग, अ मोर रिस्क टेकिंग एबिलिटी विद दैट। एसबीआई की चेयरमैन टेसी थॉमस, मिसाइल वीमेन ऑफ इंडिया, सेम। ये कौन थी? हिलरी क्लिंटन। अब यहां रुक जाता हूं, ये देखना, ये हाथ है मिशेल ओबामा का, ये बैराक है, ये है मिशेल ओबामा, इसका हाथ देखना। एक और चीज है, व्हेन आई एम ए स्पोर्ट्स पर्सन, आई एम गोइंग टू कोरिलेट विद द स्पोर्ट्स थिंग्स विद द स्पोर्ट्स। ऐसे लोग, दोज हु आर हैविंग ए मोर टेस्टोस्टेरोन इन देयर बॉडी, दे लव टू प्ले। शी वाज द ओनली फर्स्ट लेडी इन द वर्ल्ड, she was the only first lady in the world who promoted sports, who became the brand ambassador of the sports. ये schools में brand ambassador थी अपने टाइम में खेलने के लिए, अपने टाइम में when she was over there, she used to go to schools to promote sports and all that thing. And what I believe, somewhere it is correlated to this level of this one. एक और चीज देखो भाई, इस फोटो में एक और गजब की चीज है, ये तो है, एक गजब की चीज ये दिख रहा है, ये देख रहे हैं? बराक ओबामा के हाथ पे ये ऐसे निशान क्यों हैं? बास्केटबॉल से नहीं है, देखो ये हाथ में निशान किससे आते हैं? कस्सी चलाने से, कस्सी चलाने से उससे काम होता है। ही यूज्ड टू डू लॉट ऑफ वेट ट्रेनिंग। ये किससे आते हैं? हाथ से जब वेट ट्रेनिंग करते हैं, बार हाथ में आती है ना, ये उससे निशान आते हैं। और इस स्लाइड को टेक अवे मैसेज विद दिस वन, इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड व्हेन ही गॉट द टाइम टू डू फिजिकल एक्टिविटी। अपने आप को फिट रखने के लिए काम कर सकता है, आप और हम क्यों नहीं कर सकते थे? ही यूज्ड टू डू, ये इतना रहते हुए इतना फिट रहता था, जिम में रेगुलर था, और हाथ में ये चीज। एक और चीज है, बिकॉज आई वाज स्पोर्ट्स पर्सन, अब आई वाज अ बॉक्सर, एनीबॉडी बॉक्सर सिटिंग ओवर हियर? एक और चीज, बॉक्सिंग में एक और चीज, अरे वाह अभी बॉक्सर है, दैट्स ग्रेट। बॉक्सिंग में एक और चीज देखी जाती थी, आप ना घूमते फिरते अपने ओपोनेंट को देखा करते थे हम। अपन देखो, दूसरी गेम होती है तो दूसरी एक अलग गेम होती है, हार जो कोई बात नहीं, दूसरी में रेस में पीछे रह गए कोई बात नहीं, पर बॉक्सिंग के अंदर तो यह जीतने वाला तो दूसरी गेम में जो जीता हारा, जो यहाँ इसमें जीतने वाला भी कई दिन रोटी ठीक से नहीं खा पाता, उसके भी घूसे घासे लगते थे उसमें क्या, बॉक्सिंग में घूमते फिरते क्या करते थे, अपने जो बॉक्सर होता ओपोनेंट का नक्कल के ऊपर नजर डालते थे। अगर उसका नक्कल ब्लैक है, यहाँ से खूब ब्लैक है, दैट मीन्स वो खूब प्रैक्टिस करके आया हुआ है, वो प्रैक्टिस में है। अगर उसका नकल ब्लैक नहीं है, यहाँ से पता चला प्रैक्टिस में नहीं है। ये देखो छोटी छोटी टिप रहती है। एक और चीज, जंपर देखना, जंपर जितने जंपर होते हैं वो जंपर क्या करते हैं, उनके यहाँ से पता चलता है, पीछे से। जंपर क्या करते हैं, वो लेके ना रॉड रखते हैं पीछे, उसको लेके जंपिंग कर, उससे पता चल, जो अच्छा जंपर अच्छी ट्रेनिंग करके आ रहा होगा उसके यहाँ निशान जरूर मिलेंगे पीछे। तो अलग अलग स्पोर्ट्स की अलग अलग पहचान रहती है, कौन सा क्या करता है। सेम थिंग ओवर हियर, इसकी भी एक अलग से पहचान रहती है। फिर मैं कहीं कहीं एनालिसिस, कहीं की वो बात था, कहीं अलग अलग एनालिसिस किए हमने। कई चीजें हैं, निकाल देते हैं। दिस इज अगेन कोरिलेटेड टू द लव फॉर एक्सरसाइज, अगेन कोरिलेटेड टू द लव फॉर एक्सरसाइज। और एक और बात है, स्ट्रेंथ इन द चैलेंजिंग सिचुएशन। जब चैलेंजिंग सिचुएशंस होती है उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ एग्जिबिट, वही घूम फिर के वही चीज भाई, टेस्टोस्टेरोन। अब एक और चीज देखी होगी आपने, कभी आपने सभी रिसर्च स्कॉलर्स हैं, कभी आपने अपने सर को या जो सीनियर टीचर है उन्हें तेज मोटरसाइकिल चलाते देखो, गुर्र करके ऐसे, कौन चलाता है ये? टीनेजर्स कौन से? एक और चीज देखना, उनमें बहुत सारी चीजें होती है। टीनेजर क्या, तकरीबन उम्र से देखना 14-15 साल से शुरू हो जाता है, और 20-22 साल का लड़का और लड़की स्कूटर मोटरसाइकिल देखा कैसे चलाते हैं, गुर्र
ये वो उड़ा देंगे सबको, और उनके पीछे क्या लिखते तेरियां उड़ी का है, कुछ ऐसे लिखा आई लव यू, उल्टी सीधी चीज ऐसी भी लिखी होती है। किसी सर की मोटरसाइकिल पर उस पर देखा लिखा हुआ नहीं होता ना चीजें, कि ये सब पंगे कौन कराता है, टेस्टोस्टेरोन। अगेन थिंग इज दैट इज, मैं सब घूम फिर के वही कहानी है। ये जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ये बड़ा मैं कहूँ बड़ा चैलेंजिंग और बड़ा इसको कंट्रोल करके रखना, इसीलिए ऐसे इसलिए कहते हैं चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जी। ऐसे वो क्या डाले कुछ एक, और ये भी देख लेना, कुछ एक लड़कियां बड़ी तेज मोटरसाइकिल चलाती होंगी, स्कूटी बड़ी तेज चलाती, उनका हाथ देख लेना, देखना उनका हाथ, मोर लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, मोर अग्रेशन। चलिए अगेन इट इज को रिलेटेड टू समवेयर, यहां भी देखना, ये इसको हमने इससे भी कोरिलेट करके देखा। अगेन विद दिस वन 0.92 नहीं, इस हैंड करूँ, वो उंगली ठीक से नजर आ रही है, ठीक से दे रही है, राइट हैंड इधर वाला। ऑल दीज स्पोर्ट्स पर्सन सबकी 9.3 9.2 बड़ी रेयर रेशियो होती है। इसकी देखोगे तो हैरान रह जाओगे भाई की उंगली देखो इसकी, और अगली देखोगे तो बिल्कुल हैरान रह जाओगे। टॉप एंड पहले देखना, इसको देखना कितनी लंबी, ये कितनी छोटी है। टॉप एंड विजुअल स्पेशल एबिलिटी, कि स्पेस के अंदर आप किसी बॉल के साथ कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। टॉप एंड एक्टिविटी, हाईली डेवलप यू कैन से राइट हेमिस्फीयर। चलिए इसके बाद दूसरी बहुत सारी चीज़ें। इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन, समय काफ़ी ले लिया आपका, लंच टाइम भी मैंने काफ़ी ले लिया, सर भी इशारे कर रहे थे, तो कोई बात नहीं। विद ऑल दिस थिंग, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, लॉट ऑफ टाइम आई हैव टेकन। थैंक यू। इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चंस देन वी कैन डिस्कस विद दैट। हाँ भाई, हाँ कुछ लोगों को एक साइड ही दिखा, कुछ लोगों को क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों देखा। सर जिसको एक साइड दिखी उसके मेरिट और डिमेरिट है कुछ भाई ऐसा है भाई। एक और चीज़ है, सुनना, एक और चीज़ है, अभी एक और चीज़ देखना। बहुत सारी चीज़ें होती है बताने की, बहुत सारी चीज़ें होती है प्रैक्टिकल यूज़ करने की। जो काम की चीज़ है वो साथ लेके जाना, डीमेरिट को नहीं साथ में लेके जाना है यहाँ से, समझे? कि ऐसा कोई मेरिट डीमेरिट नहीं, जो भगवान ने आपको जैसा बनाया बहुत बेहतर है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। कोई मेरिट कोई डीमेरिट, नथिंग लाइक दैट, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में घूमते, दैट मीन बैलेंस है, सब चीज़ बैलेंस है। आपके अंदर संगीत की रुचि भी बैलेंस होगी, आपके अंदर कहूँ तो एक्सरसाइज और पंगे लेने की रुचि, बैलेंस पर्सनैलिटी। और जिसके अंदर ये कम है, एक ही डायरेक्शन में क्लॉकवाइज यूं यूं घूमती रही, वो राइट डोमिनेंट है, वो पंगेबाज है, वो जो चीज़ें होती है, शार्पनेस, क्या कहूँ कि रिस्क टेकिंग एबिलिटीज और ऑल दीज थिंग, दे आर मोर डोमिनेंट इन दिस पर्सनैलिटी। है नहीं ऐसे ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, परेशान करे या नहीं, नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं रहता, ऐसा कुछ नहीं रहता। वेल थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर पेशेंस एरी, थैंक यू। Very informative, very interesting lecture about the role of exercise and sports and how we think about the exercise in our life. Once sir give the two directions, one is for use of the achieving the our goal of life and the purpose of life, and second one is things as a sports, as a career. So exercise is not only for the medal and careers, exercise also used for the physical fitness and to achieving the goal of the our life. और सर ने बहुत सारे पोस्टरल डिफॉर्मिटीज़ के बारे में भी बताया, शूज़ के बारे में बताया, उसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया। तो आपने देखा होगा सर ने बताया बहुत सारे लोग चलते हैं पुष्पा टाइप, तो पुष्पा नहीं बनना है तो आप लोग सही। और लास्ट लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट 2D and 4D रेशो एंड to assess ourselves about the testosterone and how to use of this for the core life in academics and the sports. So thank you very much once again, sir. You give us your very precious time for us. Thank you once again.